बुलेटिन कोविड-19 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं याशु गांधी। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारतीय वैज्ञानिकों और अनुसंधान संस्थाओं द्वारा किए गए प्रयासों को रेखांकित करते हुए आज के इस अंक में सबसे पहले बात राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान यानी कि NIV पुणे द्वारा तैयार की गई कोविड कवच एलिसा एंटीबॉडी जांच किट की। जैसा कि हम सब जानते हैं, कोरोना के इस संकट काल में परीक्षण सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, मगर जांच प्रक्रिया के खर्चीला होने के साथ ही साथ आयातित नैदानिक उपकरणों पर हमारी निर्भरता के चलते कोरोना संक्रमण की जांच व्यापक पैमाने पर नहीं हो पाती। हालांकि इस समस्या का समाधान निकालते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR के अंतर्गत कार्यरत राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान NIV पुणे ने कोविड-19 के एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए स्वदेशी कोविड कवच एलिसा का विकास किया है। इस किट की संवेदनशीलता और सटीकता परखने के लिए मुंबई के 2 अलग-अलग इलाकों में परीक्षण को अंजाम दिया गया, जहां इसे सही पाया गया। इस जांच किट के जरिए 2.5 घंटे की एक पाली में 90 नमूनों की जांच की जा सकती है। ICMR ने एलिसा टेस्ट किट के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए जायस कैडिला फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है। और इस पर विस्तार से जानकारी के लिए हमने बात की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे से डॉक्टर गजानन एन सपकल, जो कि ग्रुप लीडर डायग्नोस्टिक वायरोलॉजी ICMR है। साथ ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे से ही डॉक्टर प्रज्ञा डी यादव से, जो कि ग्रुप लीडर BSL-4 ICMR हैं। COVID IgG ELISA is basically has 3 major components, which makes it very unique in the sense that this is first time which we have developed in our country using our own know-how of the assays, where we have used the virus which is inactivated. Otherwise the sample need to be handled in high containment facility. So we have used the viral antigen which is actually inactivated, and it can be then used in the BSL-2 kind of facility. So that is one. The other question regarding IgG is, as in any diseases, you know that the primary antibody which is the indicator of any infection is IgM followed by the IgG. So the IgM is the indicator of the primary infection, while IgG is the indicator of exposure. So here in the indigenous ELISA which we have developed, ICMR has developed, so we are looking for the IgG antibody which will tell us the exposure to the COVID-19. When the COVID-19 came, then people were not sure if we will able to detect antibody, how much importance of the ELISA test would be. But we decided that we should fast go work on this ELISA, because available ELISA is not very reliable, and we want to do many basic research. And the most important, we are looking for a zero prevalence of the country, where we can decide how much population is having exposure, as Dr. Gajanan has explained. So we can always do this thing, detecting the IgG antibody, because IgG antibody develop in the later phase of the disease, and if you detect it, then you can determine how is the prevalence in the community. So this ELISA will be used for the area, even when the people are not infected, but we can take the blood sample, we can separate the serum, and then we can use for detecting these antibodies. So in summary, I can say that real-time RT-PCR is being used for acute infection detection when a person is sick, to decide if a person is sick, so that they can be put in isolation, quarantine can be done, and also contact tracing can be done. But for the later phase of the disease, or for the exposure, or for the asymptomatic cases, we can detect the IgG antibody and do the seroprevalence. चाहे मोबाइल फोन हो या करेंसी नोट या फिर कोई कागज का टुकड़ा, इन सब में बड़ी आसानी से रोगाणु चिपक सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि इन्हें अगर किसी तरल कीटाणुनाशक से साफ किया जाए तो इनके क्षतिग्रस्त होने की आशंका बनी रहती है।
इसी समस्या के मद्देनजर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ की प्रमुख प्रयोगशाला अनुसंधान केंद्र यानी आरसीआई हैदराबाद ने 2 नए यूवी सैनिटाइजेशन कैबिनेट का निर्माण किया है। इस स्वचालित व संपर्क रहित यूवीसी सैनिटाइजेशन कैबिनेट को डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर ध्रुव नाम दिया गया है। कैबिनेट के अंदर रखी गई वस्तुओं पर यूवीसी का सभी तरह से असर यानी कि 360 डिग्री एक्सपोजर होता है। कीटाणु मुक्त करने की प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद सिस्टम स्लीप मोड में चला जाता है और इसीलिए संचालन करने वाले को उपकरण के पास इंतजार करने या खड़े होने की आवश्यकता नहीं होती। आरसीआई ने एक स्वचालित यूवीसी करेंसी नोट सैनिटाइजिंग उपकरण भी विकसित किया है जिसे नोट स्क्रीन नाम दिया गया है। ये एक ऐसी सैनिटाइजिंग तकनीक है जिसके तहत उपकरण के इनपुट स्लॉट में नोटों के बंडल को खुले रखना है। उपकरण एक एक करके नोटों को लेता है और उन्हें पूर्ण रूप से कीटाणु मुक्त करने के लिए यूवीसी लैंप की एक श्रृंखला से होकर ले जाता है। गैजेट्स और करेंसी नोटों को संक्रमण मुक्त बनाने के लिए इन दोनों मशीनों को बड़ी आसानी से कार्यालयों और बैंक आदि स्थानों पर उपयोग में लाया जा सकता है। कोरोना वायरस के खिलाफ आरटी-पीसीआर एवं सेरोलॉजिकल टेस्टिंग के मामले में भारत आत्मनिर्भर बन सके, इसके लिए सीएसआईआर ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तर्ज पर प्रोजेक्ट्स जमा करने हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें आवेदन करने के लिए इच्छुक उद्यमी या स्टार्टअप को जिस पते पर उपयुक्त फॉर्म या निदर्शन पत्र भेजना है वो इस प्रकार है। प्रभारी मिशन डायरेक्टरेट, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, नई दिल्ली। आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 18 मई 2020 है। यह आवेदन आप स्क्रीन पर दिखाए गए पते पर ईमेल भी कर सकते हैं। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। बुलेटिन कोविड-19 के अगले अंक में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए, हाथों की स्वच्छता के साथ ही मास्क का समुचित उपयोग करते रहिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।